Okay, so welcome. And Bismillahir Rahmanir Rahim. In last lecture, if you remember, we discussed how do you find integration and how do you find area by using integration. So that was area between a curve and x-axis. We also called it area under the curve. Today we'll be discussing area between two curves. In last lecture, we discussed area which was bounded by a curve y is equal to f of x and x-axis. Today we'll be finding area of a region which would be bounded by two curves, y is equal to f of x and y is equal to g of x. And then later on we'll be considering how do you use integration to find volume of a solid or volume of a solid of revolution. So the concept of finding area between two curves is exactly same. The only difference is in that case, in previous lecture, we were basically finding area of region which was bounded below by x-axis. If this is a function y is equal to f of x, we were finding area between the curve and x-axis. And the idea was splitting the given region into small rectangles, finding area of each rectangle, and then adding them up, and to get a Riemann sum. And then at the end, we were applying limit delta x goes to 0 or n goes to infinity. That was the process we did for finding area, which is obviously a definition of integration as well. We do same thing here as well. We will split this region. If you see, that's the region between two curves. One curve is y is equal to f of x, which is a blue curve, and y is equal to g of x, which is a yellow curve. And this is the blue region is basically the area whose or is the region whose area is to be determined. Okay, so we do what? We split this part again into small region, and they are rectangular region, and those rectangles can be again constructed by considering the midpoints, considering the left endpoint, or considering the right endpoint. We do what here? We are considering rectangle by considering the midpoint of the interval. वही चीज हम कर रहे हैं कि हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो इसी अगर आप यहाँ से ये स्पेसिफिक रेक्टेंगल्स को पिक करें, तो in that case, let's suppose this is a point CK. In previous case, we were taking distance between the curve and x-axis. That was taken as length of the rectangle, and the width was obviously जो आपने उसकी width ली थी वही आप लेते थे. But in this case, you will see the length of the rectangle will be basically distance between the two curves. And how do you find it? You see, this is CK, corresponding point on the upper curve or on f of x, that is f of CK. अगर ये पॉइंट CK है तो ये जो पॉइंट होगा वो CK f of CK होगा. सिमिलरली जो नीचे वाला कर्व है G of x, उस पर भी यही पॉइंट होगा CK G of CK, बिकॉज CK तो फिक्स है, वो ऊपर नीचे दोनों के लिए सेम रहेगा. और फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, दैट विल बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंड यू सी दैट. और ये किसके बराबर है? इट इज f of CK माइनस G of CK. तो CK तो फिक्स है, हमें सिर्फ ये लेना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, this is f of CK minus G of CK. So length of this rectangle is f of CK minus G of CK, whereas width of this rectangle is delta xk.
So area of this rectangle will be, if you denote that by delta AK, it will be f of ck minus g of ck multiplied by delta xk. That's what we have here. You see that area of that small element, that small rectangle, which will be height into width, right? So height, we found that f of ck minus g of ck delta xk. So this is the area of that one particular rectangle, right? And we have to construct n such type of rectangles, and we sum them up. So we take area approximation will be summation k is equal to 1 up to n delta ak, where delta ak is found as f of ck minus g of ck into delta xk. And this is a Riemann sum. And if you remember from previous lecture, when we apply n goes to infinity or norm of p goes to 0, or if delta xk are same, that is delta x, so we take delta x goes to 0, then this Riemann sum becomes what? That becomes integration. So that's the basic concept behind it. Okay, you don't need to do that again and again, because you learned that in last lecture. How do we define integration by using area? So it is the same thing. आपने जो करना है वो यही करना है जो इस नीचे बॉक्स में गिवन है. If you have two functions f and g, and you know that f is greater than g of x, if you don't know, it's also okay, but if you know, that's better. In the interval a to b, so the area between the two curves y is equal to f of x and g of x, that can be determined as integral from a to b f of x minus g of x dx. And if g of x is greater than f of x, in that case you will take g of x minus f of x and then integral from a to b. But if you don't know that f of x is greater than g of x, it can be easily determined by obviously plotting both graph. जो ग्राफ ऊपर होगा वो ग्रेटर होगा, जिस इंटरवल में जो नीचे होगा वो स्मॉलर होगा. But if you don't know that f is greater than g of x, g is greater than f of x, so you will do what? You will simply take f of x minus g of x and integrate that function, whatever or whichever is greater. You will take absolute at the end, because if f of x is greater, so you will get positive value, but if g of x is greater, you will get negative value in that case. But you know that area is never negative, we take absolute of that to make it positive. Okay, now we consider different cases here. In the first straightforward case, if you are given two curves, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, let's suppose one function is like this one, the other one is somewhere here. Let's suppose this is point A, this is point B, and you are asked to find area of this region from A to B. This is the area this is the region whose area to be determined. Okay, so that's straightforward. Let's suppose this is F and this is G. So area will be simply integral from A to B f minus g dx. At this moment, we know that f is greater than g of x. So if you take absolute or not, doesn't matter. It will be a positive quantity. If you take absolute, it will remain positive as it is. तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है अगर आपके पास ये हो जाए. लेकिन अगर ये इस तरीके का आ जाए, there is possibility that we have in one interval one function is greater, while in other interval the other function is greater, something like that, and you are asked to find area this is point A and let's suppose this is point B. So this will be the region where we are interested to find the area. Let's suppose this is F and this is G. We see in this interval, in this region, F is greater than G, right? So F minus G will be positive.
whereas in this interval g is greater than f, so f of f minus g will be negative, right? So what would you do if you find direct integration from a to b f minus g like this one? तो मसला क्या होगा, ये तो आपको पॉजिटिव इंटीग्रेशन देगा, ये आपको नेगेटिव इंटीग्रेशन देगा, तो आपस में ये कुछ पार्ट कैंसिल करेगा। जिस तरह प्रीवियस केस में हमारे पास कुछ रीजन जो था वो अगर अबव एक्स एक्सिस होता, कुछ बिलो होता, तो मैंने यही कहा था कि ये फिर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कैंसिल करके हमारे पास एक एडजस्टमेंट हो जाती है, और वो फिर एरिया नहीं होता, वो आपके पास इंटीग्रेशन तो होता है, वो ठीक है, लेकिन एरिया नहीं होता। तो एरिया के लिए फिर हमने क्या किया था कि हम ऊपर वाले एरिया को अलग से फाइंड कर रहे थे, नीचे को अलग से फाइंड कर रहे थे। वी विल डू सेम थिंग हियर, ठीक है, हम ये एरिया अलग से फाइंड करेंगे, ठीक है, और इस एरिया को अलग से फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें पहले ये पॉइंट चाहिए, ठीक है, और ये क्या है, ये जो पॉइंट है, दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, एंड दिस कैन बी फाउंड एज f इज इक्वल टू g। ठीक है, सबसे पहले आपको यही चीज करना होता है जब आप एरिया बिटवीन टू कर्व्स फाइंड करते हैं, कि f और g को इक्वेट करेंगे, वहां से x की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, इस तरह भी पॉसिबल है। And you are asked to find area this is A, this is B. So let's suppose this is A and this is part B. So we are interested to find area of this region. So in this case we are having basically this is one point of intersection, this is another point of intersection, ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर भी है, लेकिन वो इंटरवल से बाहर है, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब आप f को g के बराबर लेंगे पहले, इक्वेट f टू g, इस केस में आपके पास ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन इसमें से एक जो वैल्यू होगी वो आउटसाइड इंटरवल, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी जो होगा वो क्या करना होगा, a से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे, और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इस केस हम क्या करेंगे, जब ये एरिया में फाइंड करना होगा तो हम करेंगे a से लेकर c तक f minus g को इंटीग्रेट कर, वट एवर f इज ग्रेटर और g इज ग्रेटर, what we do it simple take absolute of this, ठीक है, और फिर से बात प्लस इंटीग्रल फ्रॉम c to d, c to b f minus g एब्सोल्यूट dx, सॉरी, इंटीग्रेशन पहले एब्सोल्यूट बाद में है, फिर आपको ये एरिया दे देगा जो बीच में आता है। डिस्कस रहा हूं राइट। इन दिस केस अगर आप जो नेक्स्ट थर्ड केस हमने ले लिया, तो उसमें आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन आप लेंगे पहले a से लेकर c तक, फिर c से लेकर d तक, और फिर d से लेकर b तक, और हर एक का एब्सोल्यूट लेकर आप क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको ये जो इंटरवल a टू b है ये गिवन होगा, यू सी इन दिस केस, इन द इंटरवल a टू b। बाज़ औक़ात आपसे कहेंगे भाई फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू f ऑफ x, find area या what is the area of region which is bounded by the two curves। अब bounded का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे अगर हम ये वाला केस ले लें, केस 1 जो ले लें,
इस केस में कोई बाउंडेड रीजन नहीं है, हमने इसको बाउंड किया बाय टेकिंग ए एंड बी, लेकिन अगर ए और बी आपको गिवन नहीं हो, उस केस में ए और बी गिवन नहीं होते, तो इसमें कोई बाउंडेड रीजन नहीं है। अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कहेंगे भाई देयर इज नो बाउंडेड रीजन, तो इसका एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते, जीरो एरिया हो जाएगा। द सेम थिंग इन सेकंड केस एज वेल, देयर इज नो बाउंडेड रीजन, whereas in third case we are having bounded region। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, हाउ डू वी डू दैट? तो इफ यू आर हैविंग सिचुएशन लाइक दैट, one function is this one, like whose geometry is this thing, the second is this one, right? If this is f and this is g, so this is the bounded region। फंक्शन तो आगे भी जा रहा है, लेकिन इस केस में ये बाउंडेड रीजन है, इसमें ऊपर f आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, g आ रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको खुद से फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो बाउंडेड रीजन के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो फिर बाउंडेड रीजन नहीं होगा, और इंटरसेक्शन हम वैसे ही फाइंड करेंगे जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। तो जब दो फंक्शंस आपको दिए होंगे, पहला स्टेप आप यही करेंगे, यू विल इक्वेट f एंड g। अगर इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कोई नहीं है, 0 है या 1 है, एक पॉइंट है या कोई पॉइंट नहीं है, तो उस केस में कोई रीजन ऑफ इंटरेस्ट बाउंडेड रीजन नहीं होगा। तो ये मैंने कहा कि इसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। जब आप ये पॉइंट ए और बी खुद से फाइंड कर लें, ये आपको यहां से आ जाएंगे। पिछले केस में ए बी गिवन थे और बीच के पॉइंट्स को हम एफ और जी को इक्वेट कर रहे थे। तो इस केस में जो एरिया होगा, दैट इज सिंपल इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी f minus g and then dx। We may have 3 points, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर इन दिस केस ये हमारे पास बाउंड्री रीजन है, ये दोनों होंगे, ये पॉइंट ए होता है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये सपोज करें दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड दिस इज थर्ड वन। तो एरिया बिटवीन द कर्व्स दैट विल बी integral a to b f minus g absolute b to c f minus g absolute। अगर आपको ज्योमेट्री पता है तो उस केस में आप उसके मुताबिक डायरेक्ट लें, जो ऊपर फंक्शन है उसको ऊपर पहले ले लें, जो नीचे है उसको बाद में ले लें। ये कंसेप्ट है जिसको हम आगे बार बार यूज करते जाएंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। इसमें यही कह रहे हैं कि फाइंड एरिया ऑफ द रीजन enclosed by or bounded by the parabola y is equal to 2 minus x square and the line y is equal to minus x। पहला स्टेप वही है कि वो कौन से रीजन बाउंडेड है, कहां से कहां तक बाउंडेड है।
तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स के बराबर ले लें, ठीक है, इक्वेट करना दोनों फंक्शंस को। यहां से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं -1 से लेकर 2 तक। इसका मतलब यह है कि ये जो रीजन है इट इज बाउंडेड फ्रॉम -1 to 2। अब दोनों का डिफरेंस ले लें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करो -1 से लेकर 2 तक, दैट विल गिव यू एरिया बिटवीन द कर्व। अच्छा, ये एरिया फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज कर लिया करें। जो इंटीग्रेशन के प्रोसीजर्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट नो हाउ टू यूज कैलकुलेटर फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन। इफ यू डोंट नो, यू शुड लर्न इट और फिर इसको यूज करें। So this area will be 9/2 units. ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है, विच इज बाउंडेड अबव बाय द फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये एक फंक्शन है। बिलो बाय एक्स एक्सिस, ये दूसरा है। एंड द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये तीसरा है। अब यहाँ पर हमें 3 ग्राफ गिवन है। इन द रीजन इज बाउंडेड बाय 3 लाइंस और 3 कर्व्स। इसको इट्स बेटर कि आप इसको प्लॉट करें पहले। दो के बीच में तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे बाउंडेड रीजन है, लेकिन अगर 3 हो तो फिर उसमें बाउंडेड रीजन फाइंड करना इतना आसान नहीं होता। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 2, स्ट्रेट लाइन है। ये x एक्सिस जो कि y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास टोटल रीजन है जिसका हमें एरिया चाहिए। तो अगर ज्योमेट्री सामने आ गई तो अब इसको आप इजीली वो कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा जो रीजन है ये दो कर्व्स के बीच में भी नहीं है और ये अंडर द कर्व भी नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, 0 से लेकर 2 तक अलग कंसिडर करते हैं, विच इज एरिया अंडर द कर्व। और 2 से लेकर 4 तक क्या करेंगे, इट इज एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड y इक्वल टू x माइनस 2। ये 4 कहां से आएगा, इट इज अगेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या करोगे, अंडर रूट एक्स को x माइनस 2 के बराबर ले लो। x की वैल्यू एक 1 आ जाता है और एक 4 आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि x इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी वगैरह में कि ये एक्सट्रानियस रूट है। x इक्वल टू 1 इज द एक्सट्रानियस रूट, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम एक एरिया फाइंड करेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 अंडर रूट एक्स, और दूसरा होगा 2 to 4, लेकिन उसमें इन दोनों के डिफरेंस को इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यू सी दैट सिंपल इंटीग्रेशन एरिया ऑफ रीजन ए, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 अंडर रूट एक्स dx प्लस 2 to 4 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 dx। यूज कैलकुलेटर टू फाइंड दिस एरिया। अच्छा, इसको फिर हम अभी इसके बाद करने जा रहे हैं एक और टेक्निक, जिसमें हम एरिया जो है वो अलोंग y डायरेक्शन ले लेते हैं, यानी द रीजन विल बी अलोंग y एक्सिस। अब ये अलोंग x एक्सिस ले लिया, लेकिन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं अलोंग y एक्सिस। और फिर यहां से लेकर यहां तक, अभी हम करेंगे इसको, यहां से अगर आप ये पॉइंट देख लें जो कि 2 पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये और दूसरा ये 0 पे, तो 0 से लेकर 2 तक, इज इट नॉट द एरिया बिटवीन 2 कर्व, वन इज दिस वन कर्व जो कि x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 2, और दूसरा कर्व y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, फ्रॉम 0 to 2 it is the area between two curves, one is y plus 2 and the other one is y square। अगर हम along y डायरेक्शन इस चीज को कंसिडर करें,
along x करेंगे फिर तो यही करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक along y करेंगे तो फिर ये प्रोसेस आपको करना होगा। तो हम एरिया बिटवीन द कर्व्स फाइंड कर सकते हैं along रीजन along y एक्सिस as well, उस तरह भी हम कर सकते हैं। प्रोसेस का वही सेम है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो रीजन है वो along y एक्सिस है, तो एक x इक्वल टू वाई एफ ऑफ वाई, दूसरा x इक्वल टू जी ऑफ वाई, दोनों का डिफरेंस आप c से लेकर इंटीग्रेट करें d तक। या अगर आपको एक तरफ बाउंड दिया हुआ है दैट्स ओके, अगर बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फिर वही तरीके करना पड़ेगा, सिर्फ x और y का रोल रिप्लेस हो जाएगा। And then area will be simple integral of f of y minus g of y from c to d। ठीक है, इसमें लेफ्ट से राइट से आपने लेफ्ट को सेपरेट कर, अगर पता ना हो कि कौन सा लेफ्ट राइट पे है तो आपने एब्सोल्यूट लेना है आखिर में। अभी वही एग्जांपल जो मैंने कर दिया अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको पहले हम ये पॉइंट्स फाइंड करेंगे, तो अगेन इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 आएगा, लेकिन -1 जो पॉइंट है वो बाहर है बिकॉज हम यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक उनको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें गिवन है कि y इक्वल टू 0 एक कर्व है, ठीक है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स था और एक था y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ये आगे -1 हम नहीं लेंगे, तो हम सिंपल इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक, और इन दोनों का डिफरेंस y प्लस 2 और y स्क्वायर का डिफरेंस आगे पर कैलकुलेटर यूज करके इसको इंटीग्रेट करना है। सेम थिंग हियर, ये रीजन जो है we can consider that along x axis or we may consider that along y axis। दोनों से किया गया है, पहले आपको ये दो पॉइंट्स चाहिए होंगे x इक्वल टू 1 और 2, कहां से आएंगे, ये इन दोनों फंक्शंस की क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप इक्वेट करेंगे अंडर रूट ये वाला इसके इक्वल करें, दोनों साइड पे स्क्वायर करें और यहां से ये x कॉमन निकालें, तो वी कैन राइट x इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उधर लेके 2 माइनस एक्स कॉमन निकालें, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स is equal to 0, and then if we solve it we get what, we get x1 and 2। ये पॉइंट्स हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं और फिर इन दोनों कर्व्स का डिफरेंस लेंगे, दिस वन एंड दिस वन। अब ये असल में ये कह रहे हैं कि भाई ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम स्विच हो रहे हैं किसकी तरफ, y की तरफ, बिकॉज द सेम रीजन कैन बी कंसिडर्ड along y axis as well, ठीक है ना। तो वो उधर स्विच का बहरहाल जरूरत नहीं है इसकी, आपको आप डायरेक्ट यहाँ पे करें, एज आई सेड दैट यू शुड फाइंड दिस इंटीग्रेशन बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में कोई मसला नहीं है, फिर आपको वो डायरेक्ट खुद फाइंड कर लेता है, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला भी कर सकते हैं, उसके लिए पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x, यू विल एक्सप्रेस दैट एज x अ फंक्शन ऑफ y। तो वो स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि हाउ डू वी डू दैट, इसी दैट स्क्वायर लेते हैं और फिर इसको इस फॉर्म में लेके और फिर ये करके, तो x इज बीन एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ y। बहरहाल इसमें भी वही तकरीबन इंटीग्रेशन आ रहा है कि व्हाट इज, हाउ डू वी फाइंड दिस इंटीग्रल, ठीक है ना। तो बहरहाल आप जो भी करना चाहें, आई वुड सजेस्ट कि जो फर्स्ट है वही करें, डायरेक्ट एक्स के लिए करें, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है एज इट इज, तो उसको एज इट इज कर लें। और मसला जो आ रहा है इंटीग्रेशन में आ रहा है, तो वो हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक अगर आप बुक में देखेंगे
तो सिंपल इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है, लेकिन वो इंटीग्रेशन आप फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इन मेथड। यू ट्राई इट इफ यू बिलीव कि आपको इंटीग्रेशन अभी आता है। जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी डेफिनेट इंटीग्रल होगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है अगर मसला, बिकॉज ऐसे भी आपने आगे इंटीग्रेशन फाइंड करने सारे के सारे ही, तो आपकी मर्जी है, करना चाहें तो करें। ट्वेंटी फाइव में कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। 25, 26 जो है ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे, ठीक है। तो हमने वहां पे एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया था। ये नेगेटिव इंटीग्रल होगा, ये पॉजिटिव इंटीग्रल होगा। मैंने कहा था ये अलग से फाइंड करके एब्सोल्यूट ले लो, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर आप एब्सोल्यूट ले भी ले तब भी ठीक है। तो दिस एरिया विल बी सिंपली इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 0 x under root 4 minus x square। ये इसका एरिया फाइंड हो गया, ये वाला जो पार्ट है, call this area 1 plus if this is area 2, again absolute of integral from 0 to 2 फंक्शन सेम ही रहेगा x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों केस में कैलकुलेटर को यूज करके आपके पास एरिया आ जाएगा वॉट एवर इट इज, ठीक है। द सेम थिंग इन क्वेश्चन 26। इसी फंक्शन को क्या करो, ये दिया हुआ है वो 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करो डायरेक्टली, कोई मसला नहीं है। अब मर्जी आपकी, अगर आप इसको कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय कैलकुलेटर तो बड़ा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप करेंगे इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट मैंने तरीका बताया हुआ है। यहाँ पर पावर 1 है और साथ में 1 माइनस कॉस एक्स की डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इट्स बेटर कि आप यूज करें कैलकुलेटर को। द सेम थिंग हियर, इंटीग्रल फ्रॉम -π to 0 और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पर -π से लेकर -π/2 तक रीजन ए हो जाएगा और फिर -π/2 से 0 तक रीजन ये वाला हो जाएगा। तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू डू इट। ओके जी, इन 29 इफ यू सी दिस इज द रीजन which is between y is equal to 1 curve and y is equal to cos square। अब ये रीजन बिटवीन द कर्व की बात हो रही है, तो इस केस में जो एरिया होगा दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम वेयर टू, अब देखिए इसमें ज्योमेट्रिकली गिवन है तो हमें पता है कि कौन सा पॉइंट है। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से एंड द रीजन इज गोइंग अप टू पाई, तो दिस विल बी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई। द फंक्शन अबव इज 1 and below is cos square, so it is simply 1 minus cos square x dx which is sin square, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है ये sin square होगा, तो इसको रिप्लेस करेंगे sin square से और फिर इंटीग्रेट करें बाय यूजिंग कैलकुलेटर या मैनुअली, आपको पता है जैसे भी करना है। दिस इज द रीजन बिटवीन y is equal to 1 by secant square x and y is equal to -4 sin square x। तो दोनों को क्या करें, दोनों का डिफरेंस लेकर इंटीग्रेट करें फ्रॉम -π/3 to π/3, that will give you this area। ये जो रीजन आ रहा है हमारे पास सारा, अच्छा ये अब रीजन जो है इट इज along y डायरेक्शन, यू सी राइट, बिकॉज वी आर गिवन x इज अ फंक्शन ऑफ y एंड x इज अ फंक्शन ऑफ y, और ऑलरेडी आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी गिवन है, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है।
तो डायरेक्ट आप यहाँ पर जब एरिया फाइंड करेंगे तो दैट विल बी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, that is 12y square minus 12y cube, इसको सेपरेट करना है, माइनस 2y square and then plus 2y, इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर जो है 34 में इट इज द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस 2x पावर 4, दोनों का डिफरेंस लेकर -1 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करें। जबकि 35 में जो रीजन शेड है वो दो कर्व्स के बीच में नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये पार्ट A हो जाएगा या A1 हो जाएगा, this will be part A2। Now A1 is the area between this curve and this curve, whereas A2 is the area between this black graph and red graph। तो दोनों को हम अलग अलग करेंगे। The area, total area, which will be the first part A1 is integral from 0 to 1, and the upper function is x, lower function is x square by 4। Plus the second part is then integral from 1 to 2, अब ये अपर फंक्शन जो है y इज इक्वल टू 1 है और लोअर जो है वही एक्स स्क्वायर बाय 4 ही है। ठीक है, इनको इंटीग्रेट करें, यू विल गेट एरिया ऑफ द रीजन। ओके, सिमिलरली द सेम थिंग हियर। अगेन ये जो रीजन है ये फिर किसी एक फंक्शन के नीचे नहीं है, लेकिन अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 पे स्प्लिटिंग आ रही है, तो एक फंक्शन हम ये ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन हम ये ले लेते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये अगर हम अलोंग वाई एक्सिस कंसिडर करें इस रीजन को, ठीक है, तो ये y इक्वल टू 2 माइनस एक्स या x इक्वल टू 2 माइनस वाई और x इक्वल टू अंडर रूट वाई के बीच में एरिया है फ्रॉम 0 to 1। बहरहाल डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, ये अलग से ले लिया तो दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर माइनस 0 करेंगे, और दूसरा हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास सिंपल एरिया आ जाएगा। इन 37 हमें एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, दूसरा गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम पहले ये पॉइंट चाहिए जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राफ कहाँ, बिकॉज ये दो रीजन हैं, दो डिफरेंट उसमें आ रहा है, तो एक रीजन को अलग से करोगे, दूसरे को अलग से करोगे। तो ये पॉइंट्स फाइंड करने का यहाँ पे 36 नंबर दोबारा एक्सप्लेन कीजिए सर। 36 नंबर दोबारा बोलें, सॉरी, से अगेन सर, ये क्वेश्चन नंबर 36 दोबारा एक्सप्लेन करें सर। ओके, क्वेश्चन 36 में देखिए हमारे पास ये लाइन वैसल में नहीं है, लेकिन मैंने इसको ड्रा किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्स पे। तो एक ये रीजन है विच इज द एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा जो है वो ये रीजन है विच इज द एरिया अंडर द कर्व वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स। जिसको हम अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं डायरेक्टली इस फंक्शन को, और इसको हम अलग से इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्ट इस फंक्शन को। तो ये जो होगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो होगा वो इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस एक्स होगा। तो 37 में हमें पहले ये पॉइंट चाहिए जो कि इन दो कर्व्स का, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो प्रोसीजर वही है कि दोनों को इक्वेट करो, सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक वैल्यू -2 और एक 1, तो यू सी दैट एक इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 पे है यहाँ पर, और एक ये जो पॉइंट आ गया ये -2 आ गया। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे -3 से लेकर -2 तक, ये रीजन फाइंड हो जाएगा,
और फिर -2 से लेकर 1 तक ये रीजन फाइंड हो जाएगा। तो दैट इज डन हियर, -3 to -2 एंड देन -2 to 1, और इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस आप ले लो। ठीक है, यहाँ पर x² - 4 माइनस ये वाला लिया है, इधर हमने ले लिया फिर ये वाला -1, या फिर आप एब्सोल्यूट लेंगे अगर एक f - g ले रहे हैं तो। सेम थिंग इन 38, 39 एंड 14 में ये पॉइंट सारे मेंशन है। अगेन इधर भी आपको ये फाइंड करना पड़ेगा ये कौन सा पॉइंट है। ये तो मैं क्लियर है कि ये 0 है, 0 से क्रॉस हो रहा है, तो ये आप फिर आगे अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हमें ग्राफ गिवन है। आगे अब इसके बाद क्या होंगे, हमें ग्राफ गिवन नहीं होंगे, डायरेक्ट हमें फंक्शंस दिए होंगे। तो फ्रॉम 41 क्वेश्चन 41 to 50 हमें क्या करना है, हमें फंक्शंस गिवन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, वन फंक्शन अनदर फंक्शन। ठीक है, और हमें एरिया चाहिए बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। इंटरवल हमें गिवन नहीं है, तो इसमें बाउंडेड रीजन की बात हो रही है कि उसका एरिया क्या होगा। तो 41 में अगर हम देखें y = x² - 2, y = 2, पहले दोनों को इक्वेट करेंगे। x² - 2 is equal to 2, it means x² is equal to 4, and then we find x equal to +-2, राइट। तो एक -2 आ गया और एक +2, तो ये जो दोनों के बीच में रीजन है वो -2 से लेकर 2 तक बाउंड होगा। तो वी इंटीग्रेट द डिफरेंस ऑफ दीज टू फंक्शंस, x² - 2 and 2, दैट इज x² - 2 - 2, और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -2 to 2। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा फंक्शन ऊपर है कौन सा नीचे है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, किसी को भी डिफरेंस ले सकते हैं। आप 2 माइनस ये भी ले सकते हैं, या ये वाला माइनस ये भी ले सकते हैं, पर एब्सोल्यूट ले लें क्योंकि नेगेटिव एरिया हमारे पास नहीं आ सकता। 42, 43, 44 ये सारे बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, दोनों को इक्वेट करें। अगर इक्वेशन में कई मसला आ रहा है, सॉल्व नहीं कर सारे तकरीबन क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, सिर्फ ये 47 डिग्री 4 का आ रहा है, तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप इसके लिए भी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड द सेम थिंग इज डन इन 48 एज वेल। इसमें आपके पास एक कर्व तो y इक्वल टू दिस वन एंड द अदर वन इज y इक्वल टू 0। इसका मतलब है y इक्वल टू 0 इज बेसिकली x एक्सिस है, तो इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व ही है, तो 0 के बराबर ले लेंगे। यहाँ से x की 3 वैल्यूज आती हैं, एक 0, एक +-a, 2 वैल्यूज वहाँ से आ जाती हैं, और फिर हमें स्प्लिट करना है इसको -a से लेकर 0 तक और फिर 0 से लेकर a तक इंटीग्रेट करें। You will get the simple area under the curve. Okay, question number 49. Let me check attendance, then we move towards 49 question. एक्सक्यूज मी सर। Yeah. सर अगर इस तरह का केस आता है सर कि दोनों कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे हो ना सर, तो फिर हमने जो पढ़ा था कि एक्स जहाँ पे भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक्स एक्सिस के नीचे हो चाहे ऊपर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यू भी इस तरह लेंगे कि अपर जो करो वो पॉजिटिव लेंगे और लोअर जो करो होते सर वो नेगेटिव लेंगे। हमने तो शायद पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही कोई नहीं किया यार। कर्व ऊपर है तो बड़ा है, नीचे है तो छोटा है। नहीं सर, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन के बाद तो फिर नंबर आता है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है इसमें ना। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के बाद जब आप इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं ना, जी सर, तो फिर तो कोई मसला इसमें नहीं आता ना। फिर तो आपके पास अगर नेगेटिव है तो वो आप सिंपली पॉजिटिव करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो वही चीज़। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह नहीं आता कि वो नीचे है या ऊपर है, वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव यह आ रहा है कि आपने f - g लिया या आपने g - f लिया है। सही है सर। ठीक है, वो हमारे पास जब फंक्शन
ये सवाल आई डोंट नो, ये कंफ्यूजन आपकी कब तक रहेगी ये चीज़ें मिस्टर अब्दुल्ला जान। इस तरह से मेरे पास एक रियल हुआ लतीफ़ा भी है, शायद मैंने पहले भी सुनाया था आपको, ठीक है ना। एक एग्ज़ाम में था और मैंने यही चीज़ बात की थी कि आप ये इंटीग्रेशन जो है यू कैन डू दैट बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तब भी स्टूडेंट ने यही पूछा, सर ये हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर से। फिर मैंने क्लास में भी अनाउंस कर दिया कि भाई आप लोग ये जो इंटीग्रेशन है जहाँ पे वॉल्यूम या एरिया फाइंड करना हो, उससे आप उससे आप कैलकुलेटर से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब जहाँ पे मैं खड़ा था मेरे साथ एक बंदा खड़ा था, बेटा था, एग्ज़ाम दे रहा, बच्चा है, स्टूडेंट था। अब उसने मुझसे दोबारा उठ के पूछा, सर ये जो क्वेश्चन है इसमें एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है, इसको मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूँ ये इंटीग्रेशन जो है। तो मैंने कहा आपने जो भी मैंने अनाउंस की वो बात आपने सुन ली है। उसने कहा यस सर। मैंने कहा मैंने क्या बोला? सर आपने बोला कि कर सकते हैं। मैंने कहा फिर क्यों पूछ रहे हो? जब मैंने बोला है कि आप कर सकते हो, आपने सुना है कि कर सकते हैं, फिर दोबारा वही पूछ रहा है। तो जगह सर मैं कंफर्म कर रहा था। तो आप लोग ये कंफर्मेशन करते हैं, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि कर सकते हो, फिर दोबारा क्यों पूछ रहे हो कि सर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Obviously we can, once I am saying that you can do it, so you can do it, you should do it, you can do it, you should do it। आप ये लाजमन करें, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं फील्ड में जाके कर रहे हैं और आप भाई इंटीग्रेशन फाइंड करो, कैसे सफ़र करो, मैं थोड़ा सा पहले चेक करूँ कि ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, और आपको फिर एंटी डेरिवेटिव के रूल्स भूल जाएंगे, भाई इंटीग्रेशन में पार्ट्स करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है। यू शुड नो, आपके पास कैलकुलेटर होता है, उसको यूज़ करो, इंटीग्रेशन फाइंड करो। क्योंकि ये अब वॉल्यूम का क्वेश्चन है, इसमें जो मांग रहे हैं वो वॉल्यूम मांग रहे हैं, ना कि आपसे इंटीग्रेशन मांग रहे हैं। हाँ, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट करो, तो फिर ठीक है, आप उसको मैनुअली करोगे, आप सारे रूल्स फॉलो करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में, if you see y is equal to under root x absolute and 5y is equal to x plus 6, they're asking how many intersection points are there. So this is solved here. You see y is equal to under root x absolute, ये हमें दिया हुआ है। पहले स्टेप में इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए, तो दोनों को इक्वेट करो, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। स्क्वायर रूट खत्म करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये 1/25 ये स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, दैट इज x एब्सोल्यूट। नाउ यू नो दैट x एब्सोल्यूट इज x, इफ x इज पॉजिटिव इट इज माइनस x, विद x नेगेटिव। तो हम ये दोनों केसेस कंसिडर करेंगे, एक बार x लेंगे और एक बार माइनस x लेंगे। तो जब हम इस चीज को x के बराबर लेते हैं और 25 उधर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाता है, और जब इसको हम माइनस x के बराबर लेकर 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर माइनस 13 x प्लस 36 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 37 x प्लस 36 इक्वल टू 0, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आ जाती है 9 और 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 36 माइनस 1। देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दीज टू कर्व्स। तरतीब में लिखना ज़रूरी है, तो माइनस 36 टू माइनस 1 एंड देन 4 टू 9। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 36 टू माइनस 1 इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस, फिर इसके बाद माइनस 1 से लेकर 4 तक इन दोनों का डिफरेंस, और फिर 4 से लेकर 9 तक इन दोनों का डिफरेंस। तीन हमारे पास जो रीजन हैं वो आ जाएंगे, बाउंडेड रीजन होंगे। अब देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है, 3 इंटीग्रेशन आपको फाइंड करने हैं और इसमें एब्सोल्यूट इन्वॉल्व है। तो जब ये इंटीग्रेशन आप फाइंड करोगे तो ये बड़ा लंबा हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में तो ठीक है, इसमें माइनस 36 टू माइनस 1 है, तो यू वुड रिप्लेस x एब्सोल्यूट विद माइनस x डायरेक्टली एंड यू विल इंटीग्रेट दैट। इधर देखिए माइनस 1 से 4 तक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो इस इंटीग्रल को फिर से स्प्लिट करना होगा, माइनस 1 से 0 तक और 0 से 4 तक। अब माइनस 1 से 0 तक आपने इसको माइनस x लेना है, 0 से 4 तक आपने इसको प्लस x लेना है अंडर रूट के अंदर, और 4 से 9 भी पॉजिटिव है तो वहाँ पे भी आप प्लस x लेना है। इस बेटर कि आप यूज़ करें कैलकुलेटर को, तो उसमें फिर आपको ये स्प्लिटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं होती, और आपको ये भी नहीं चाहिए हो कि भाई मैं x ले लूँ या माइनस x ले लूँ, क्या करूँ, एब्सोल्यूट को किससे रिप्लेस करूँ। तो इट्स बेटर कि आप क्या करें, कैलकुलेटर को यूज़ करें। सेम थिंग इन क्वेश्चन 50,
आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इनको इक्वेट करेंगे पहले, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4। पहले एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो एक बार माइनस लगा लें और एक बार प्लस लगा लें, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली उनको तरतीब में लेके इंटीग्रेट करें इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस, एंड देन अगेन यूज कैलकुलेटर, क्योंकि फिर ये इस तरह से मसला आता है कि एब्सोल्यूट को कैसे खत्म करना है, और उसके लिए फिर आपको इंटरवल्स चाहिए होगी, कहाँ से कहाँ तक आपने वो इंटरवल लेना है, कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है। इट्स बेटर कि वो चीज़ आप जहन से निकाल दें और डायरेक्ट इंटीग्रेट करें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। बिकॉज इसमें इस तरह नहीं होता कि आप जीरो लेंगे और स्प्लिटिंग आप जीरो पे करेंगे। इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज इंटीग्रल फ्रॉम -4 to 4 x स्क्वायर माइनस 4 एब्सोल्यूट dx, तो उससे पहले आप स्प्लिटिंग करेंगे, बिकॉज एक इंटरवल में इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेना है और दूसरे इंटरवल में इसको आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेना है। अब वो इंटरवल्स क्या आएंगे वो आपको फाइंड करने होते हैं। बहरहाल इसमें अगर वॉल्यूम या एरिया के क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पे डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर को, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। ये वो चीज़ है कि आपने सीखना है कि हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ओके जी, इन 51 अगेन इसमें ज़्यादातर जो फंक्शन है आपके सारे फंक्शन जो हैं वो द रीजन इज अलोंग वाई एक्स डायरेक्शन और वाई एक्सिस पे है। 51 में कह रहे हैं कि x इक्वल टू 2y स्क्वायर, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस पे तीन फंक्शंस हमें गिवन है, इसलिए इसको प्लॉट करना होगा पहले ताकि हमें रीजन का पता चल जाए कि रीजन कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले 2y स्क्वायर का ग्राफ है, इधर यू सी दैट इज ड्रॉन, सिंपल पैराबोला होगा। y इज इक्वल टू 3 को ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन आ जाता है, और x इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि ये y एक्सिस है। अब ज्योमेट्री ड्रा हो गई है तो you see that is it not simple area under the curve 2y square along y axis, तो 2y square को इंटीग्रेट करो from 0 to 3, that will give you area of this bounded region। बाकी फिर वही चीजें हैं। 52 में आप क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और x इक्वल टू वाई प्लस 2 है, दोनों को पहले इक्वेट करें, वहां से y की वैल्यूज -1 2 आ जाते हैं, और फिर इन दोनों फंक्शंस के डिफरेंस को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें फ्रॉम -1 to 2। बाकी वही कंसेप्ट है, सिर्फ फर्क यह कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ x की बजाय अब फंक्शन ऑफ y आ गए हैं। ओके, ये आप 56 तक आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर अब क्वेश्चन 63 64 वगैरह में इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको इंटरवल्स गिवन है, ठीक है। तो इंटरवल के बीच में भी आपने देखना है कि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं है। तो अगर आप इसको देखें तो जो फर्स्ट है उसकी वो ये दोनों आपस में इस इंटरवल के बीच में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये वही 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है और पाई पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो ये 0 पे इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सिमिलरली पाई पे भी 0, साइन पाई 0 होता है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, सही है? तो ये दोनों जगहों पे वैल्यू क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये इनकी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। बहरहाल ये वैसे भी एंड पॉइंट्स हैं तो इसमें स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों फंक्शंस के डिफरेंस को, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई टू साइन एक्स माइनस साइन 2x। अगर डाउट है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो आप इसका एब्सोल्यूट ले लें, दैट्स इट। सेम थिंग हियर, 8 cos x और y secant स्क्वायर x का डिफरेंस लेकर इंटीग्रेट करें फ्रॉम -π/3 to π/3।
लेकिन अगर आप 65 और 66 को देखें, इनमें हमें इंटरवल्स गिवन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट होंगे, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें चाहिए। अब इनको सॉल्व करना, जब आप cos पाई x बाई 2 को इक्वेट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, तो वो न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व होते हैं हमारे पास। बाकी जो मेथड्स हैं उसे नहीं हो सकते। बात यहाँ पे हम गेस कर रहे हैं इनको, ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम गेस कर रहे हैं। यू सी दैट अगर हम इधर 0 पुट करें x की जगह और इधर भी 0 पुट करें, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है? द आंसर इज यस। यू सी, इधर से 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर 0 पुट करेंगे तो का 0 भी 1 आता है। तो इसका मतलब है 0 इसका रूट है, यानी 0 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर हम 1 पुट करें इधर, तो cos पाई बाई 2 से 0 आता है, इधर भी 1 पुट करेंगे तो 0 आता है, -1 पुट करें तब भी 0 आता है। तो इसका मतलब है कि ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। या इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो -1, 0 और 1 ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। बिकॉज ये cos x और sin x है, तो ये तो वही -1 और 1 के बीच में इनका ग्राफ ऐसे बनेगा। कहाँ गया यार, ठीक है। cos और sin के जो ग्राफ है वो वैसे ही, मतलब आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये लेट्स सपोज आर्बिट्ररी इस तरह बन रहा है, एंड सो ऑन। तो ये जो और दूसरा जो कर्व है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो यहां से ही इस तरह से क्रॉस होगा कहीं पे जाके, पर आगे जाके फिर वो नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, जबकि cos का ग्राफ जो है वो ऊपर तरफ ऐसा कर रहा है, वो उधर ऑसिलेट हो रहा है, जबकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है। तो एक वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं 0 पे, और एक 1 और -1 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारे पास बेसिकली रीजन होगा इधर से, ये थोड़ा सा इस तरह होगा इधर से, ठीक है। द सेम थिंग इन दिस वन एज वेल। अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो sin 0 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है। अगर हम 1 पुट करें तो sin पाई बाई 2 1 होता है, इधर भी 1 आता है। अगर हम -1 पुट करें तो sin माइनस पाई बाई 2 -1 होता है, ये भी -1 होता है, जिसकी वही सेम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। और फिर एरिया फाइंड करना है तो एक बार आप लेंगे -1 से लेकर 0 तक, और फिर इसके बाद लेंगे 0 से लेकर 1 तक, इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस, दिस फंक्शन माइनस दिस वन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बाकी भी ऐसे ही करना है। इनमें फिर वही बात है कि आप इनको इक्वेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। यू शुड यूज कैलकुलेटर फॉर इंटीग्रेशन, राइट। एनी क्वेश्चन? राइट, इफ नॉट सो वी मूव फर्दर। अब हम आते हैं वॉल्यूम की तरफ। हाउ डू वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड? ठीक है, एक हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, एक होता है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। कंसेप्ट सेम है। जिस तरह हमने एरिया फाइंड करने के लिए बात की थी कि क्या करोगे, उस एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जो रेक्टेंगल्स हमने लिए थे वहां पे। यहाँ पे भी वही चीज है कि आपके पास जो सॉलिड आता है, उस सॉलिड के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए आपने पहले उसका एक स्मॉल पार्ट लेना है, स्मॉल पीस लेना है, इसको हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे या इसको हम स्लैब कहते हैं। उसका आप एक स्मॉल स्लैब लेते हैं, और फिर उस स्लैब की शेप को डिटरमिन करने के बाद हम चेक करते हैं कि उसका एरिया क्या है और उसका फिर वॉल्यूम क्या बनता है। उसका बेस एरिया लेकर उसकी जो हाइट है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो स्मॉल पार्ट है वो यहाँ पे इस तरह से प्लॉट हुआ, ये इसका बेस है, ठीक है। इसके बेस का एरिया अगर हम रिप्रेजेंट करें ए एक्स के से
x हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आर्बिट्री पोजीशन पे है, बिटवीन a एंड b ये आर्बिट्री पोजीशन पे है। और फिर इसके बाद ये जो हाइट इसका आता है डेल्टा एक्स के, इससे जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जनरली हम डिफाइन यही करते हैं कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट, दैट विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, will always give you volume of that solid. तो कंसेप्ट वही सेम है, आपके पास एक स्मॉल स्लैब लेते हैं, उस स्मॉल स्लैब का हम वॉल्यूम लेंगे बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ बेस ऑफ द स्लैब मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ दैट स्लैब विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल स्लैब और स्मॉल एलिमेंट, और फिर उन सबको डिवाइड कर ऐड करते हैं, बिकॉज अपने पूरे डोमेन को डिवाइड करना होता है स्मॉल स्लैब्स में। ठीक है, और फिर लिमिट अप्लाई करते हैं n goes to infinity, तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है। तो आपको ये बार करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही चीज है कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ इंटीग्रेबल क्रॉस सेक्शनल एरिया ax फ्रॉम a to b, दैट इज सिंपली इंटीग्रल ऑफ द एरिया। ठीक है, जो एरिया फंक्शन आता है, वेयर एरिया विल बी बेसिकली एरिया फॉर दैट बेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप ध्यान में रख लें, ये जो 4 स्टेप्स हैं, कि सबसे पहले आप चेक करें कि जो सॉलिड आता है उस सॉलिड का वो टिपिकल क्रॉस सेक्शन किस शेप का होगा, वो रेक्टेंगल बनेगा, वो स्क्वायर बनेगा, वो सर्कल होगा या क्या होगा वो। ठीक है, और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, उस शेप का अगर स्क्वायर आता है तो उसका एरिया क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, ध्यान में रहे, बिकॉज हम आर्बिट्री पोजीशन पे लेते हैं उसको। सही है, तो उस टिपिकल जो सेक्शन आता है, क्रॉस सेक्शन आता है, उसका एरिया फाइंड करो, और फिर उस के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एंड देन यू वुड सिंपल इंटीग्रेट द फंक्शन इन दैट दोज लिमिट्स देन। ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स याद रखने, इंटीग्रेशन आपने करनी है एरिया के लिए। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आपको एक वॉल्यूम कोई दे दे, भाई इसका वॉल्यूम फाइंड करो, और आप क्या कर दें, आप उसकी चॉपिंग शुरू कर दें। ठीक है ना, तो उसकी चॉपिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट देखें। ऐसे कोई आपसे कह दे कद्दू है दिया हुआ है, इस कद्दू का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कद्दू है वो बेसिकली सर्कुलर सिलेंडर की तरह ही होता है, एग्जैक्टली तो नहीं होता लेकिन वो सर्कुलर होता है। सही है, तो इसका जो एरिया होगा, बेस एरिया जब होगा तो वो सर्कल बनेगा। ठीक है, और सर्कल का जो एरिया वो पाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, आपने उसका देखना है कि उसका रीजन उसका कितना आता है, और फिर इसके बाद उस कद्दू की आप लेंथ मेजर करें और उसको फिर इंटीग्रेट करें फ्रॉम दैट लेंथ। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं इसको इस तरीके से। तो लेट्स सपोज आपको एक पिरामिड दिया हुआ है जिसकी हाइट जो है वो 3 है, और साथ में इंफॉर्मेशन दिया है कि उसका बेस जो है वो स्क्वायर है विद 3 मीटर ऑन अ साइड। ये लिमिट्स मेजर करेगा, बिकॉज इसकी जो हाइट है वो क्या है, वो 3 है। तो आप क्या करो, अगर हम उसकी जो वर्टेक्स है उसको ओरिजिन पे रखते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, वो 3 तक जाएगा। तो इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 से लेकर 3 तक होंगे। अगर आपने वर्टेक्स को 1 पे रख लिया तो ये जाएगा 4 तक, तो उस केस में जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगे 1 से लेकर 4 तक होंगे। तो लिमिट यहाँ से डिटरमाइंड हो गया बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ दिस पिरामिड। अच्छा, सेकेंड इन्फॉर्मेशन फिर आपको ये गिवन है, ये जरूरी नहीं कि आपको बार बार गिवन हो। इट सेज दैट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिरामिड परपेंडिकुलर टू द एल्टीट्यूड x मीटर डाउन फ्रॉम द वर्टेक्स इज अ स्क्वायर x मीटर ऑन अ साइड। वो कह रहे हैं कि यहाँ से जब आप नीचे आते हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं, कोई भी उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, कोई भी स्लैब लेते हैं, तो वो स्लैब जो होगा वो उसकी शेप क्या होगी, उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। एंड ऑब्वियस बात है, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो जब हम यहाँ से x डिस्टेंस पे जाते हैं और यहाँ पे उसका स्लैब लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो वो स्क्वायर बनेगा। एंड यू नो दैट स्क्वायर का एरिया क्या होता है, x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो a हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, लिमिट्स हमारे पास आ गए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, बिकॉज हमने ऑरिजिन पे रखा हुआ है। तो इस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 to 3, दैट विल गिव यू 9 मीटर क्यूब, बिकॉज ऊपर आपके पास जो हाइट है वो मीटर में है, तो जो वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब में होगा। तो इट्स वेरी इजी। A curved wedge is cut from a circular cylinder of radius 3 by 2 planes. ठीक है, तो
आपके पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसे आपने एक वेज को कट करना है। अब वो तरीका बता दिया कि कैसे काटना है आपने उस वेज को। लेट्स सपोज हम एक सिलेंडर कंसीडर करें, ठीक है, सिलेंड्रिकल वो है। अभी कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, ये इसका एक्सिस है, तो एक प्लेन जो है, एक छुरी जो है वो क्या कर रहा है, वो वर्टिकली काटता है ऐसे। एक जो है वो यहां से इसको ऐसे काट रहा है विद एन एंगल ऑफ 45, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का एक शेप बनेगा, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल ही है, सिलेंडर है, तो इस तरह का एक वेज बन जाता है जो आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा है इधर। सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तरीका वही है कि ओरिजिन से लेकर सेंटर पे हमने रखा हुआ है इसको, यहां से लेकर हम x डिस्टेंस पे एक पीस उसका काटते हैं। लेट सपोज उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो वो क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा, वो रेक्टेंगल्स बनता है, ठीक है। जब आप उसको काटेंगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा। अब उस रेक्टेंगल की हमें लेंथ भी चाहिए, उसकी हमें विड्थ भी चाहिए। तो विड्थ तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, बिकॉज यू सी दैट ये 45 एंगल में दिया हुआ है कि ये 45 एंगल पे काट रहा है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस है और वो परपेंडिकुलर दोनों बराबर होंगे। रीजन क्या है, बिकॉज एंगल इज 45। तो यहां से लेकर यहां तक हमने x डिस्टेंस लिया हुआ है, तो ये भी x ही होगा। तो इस रेक्टेंगल जो हमारे पास आएगा, इसमें बन रहा है, उसकी लेंथ विड्थ जो होगी वो x के बराबर होगी। तो w इज इक्वल टू x। हमें उसका लेंथ भी चाहिए, लेंथ किसके बराबर है, लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस हमारे पास है, ये जो डिस्टेंस है। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली सिलेंडर के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, और सिलेंडर सर्कुलर है। तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक सर्कल है, कम ऑन, ठीक है। तो एक पॉइंट अगर हम यहां पे लेते हैं x, सपोज करिए ये पॉइंट x है, तो एक पॉइंट यहां पे होगा, दूसरा फिर यहां पे होगा, ये इस तरह से रेक्टेंगल का लेंथ बनेगा। अब सर्कल के इक्वेशन क्या होगा, रेडियस 9 है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये उस सर्कल का इक्वेशन होगा। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y विल बी अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस आता है, मतलब यह कि ये जो पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको हम लेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहां पे जो पॉइंट है ये वाला, दैट विल बी माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, विल इट नॉट बी 2 टाइम्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो जो विड्थ बन जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। And then area of a rectangle is simply length into width. So a of x is this one you see from here. लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3 तक, बिकॉज रेडियस उसका 3 है, तो जो वेज है उसकी मैक्सिमम लेंथ 3 तक ही हो सकती है। इंटीग्रेट करेंगे आपके पास 18 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। इसके लिए एक वीडियो होती है, पता नहीं वो अभी पढ़ी है कि नहीं, मैंने कल डाउनलोड की थी, बड़े मजे की थी। लेट्स चेक इट अगेन।
या ये वाली है। इसको जरा गौर से देखें इस वीडियो को। हमारे पास एक फंक्शन हम लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये एक लाइन लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/10x, ठीक है। और फिर हम एक रीजन इस पे वो कर रहे थे, x इक्वल टू 4 पे एक लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास रीजन है। अब इस रीजन को हम बेसिकली रिवॉल्व करते हैं x एक्सिस पे, यू सी दैट। तो ये एक सॉलिड बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें ये सॉलिड, ये एक सेकंड केस हम ले रहे हैं, ठीक है। हम केसेस लेंगे जिसमें बीच में होल नहीं होंगे। अभी इसमें होल वाला आ रहा है तो वो होल वाला भी हम लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ ये गौर करें कि जो हमारे पास सरफेस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन आता है, उसका जब हम पीस लेते हैं ना, वो पीस किसके बराबर है? वो एक सर्कल होता है, वो सर्कुलर डिस्क होता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं या सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसका हमेशा के लिए जो एलिमेंट आएगा, जो सेक्टर आएगा, वो हमेशा सर्कुलर होगा। एंड यू नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम वही बात यहाँ पे करेंगे इसमें। ओके तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं। ओके तो सॉलिड ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब आप इसको रिवॉल्व करते हैं तो आपके पास एक सिंपल से सॉलिड जो बन जाता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं, स्मॉल स्लैब लेते हैं, वो हमेशा के लिए क्या होगा? सर्कुलर डिस्क होगा। और उसका फिर एरिया जो फंक्शन हमारे पास ए एक्स आता है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो वो हम पाई आर स्क्वायर लेंगे, और आर जो होगा वो आर ऑफ एक्स होगा। तो जो वॉल्यूम का फार्मूला था पिछले उसमें हम ए को रिप्लेस कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो हमको आर फाइंड करना होगा अभी, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑल द टाइम, बिकॉज एरिया सिंपल है, पाई आर स्क्वायर है। तो हम एरिया को फाइंड करने के बजाय हम रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अब इसमें हम डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं, वेरियस केसेस, ठीक है। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। एक हमारे पास केस ये है कि इफ वी कंसीडर रीजन बिटवीन अ कर्व, जैसे भी हमने y इक्वल टू अंडर रूट एक्स लिया था, लेट्स सपोज, एंड बिटवीन एक्स एक्सिस, उस एनिमेशन में हमारे पास जो था, हमने एक और लाइन लिया था, उसके बीच में रीजन था, लेकिन वो बाद में आ रहा है, वो अलग केस है इसका। तो ये रीजन जो है, इस रीजन को अगर हम क्या करेंगे, इफ यू रिवॉल्व दैट बाय एक्स एक्सिस, उसको हम यहाँ पर रिवॉल्व करें, तो यहाँ से क्या बन जाता है? इस तरह का एक सॉलिड बन जाएगा, जो अभी आपको नजर आ गया, ठीक है। और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे एक एक्स पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है? एक स्लैब लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये उस स्लैब का फिर क्या होगा? रेडियस होगा। तो रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं? ये पॉइंट आप ले लेते हैं x0, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा ये x और y है, तो y की वैल्यू हमें जो फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स का, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आएगा इनके बीच में, ये वही आपके पास रेडियस होगा आर ऑफ एक्स, जो कि बेसिकली इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। तो हम सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज करके यहाँ से फाइंड करेंगे। इस स्पेशल केस में आर जो है वो अंडर रूट एक्स के बराबर है। ये हमारे पास एक केस हो गया जिसमें रीजन बेसिकली डिफरेंटली होता है। तो इसमें जो रीजन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या अलोंग एक्स एक्सिस, एंड इट इज बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस।
and we are revolving it about x axis. ये बात जरूरी है इसको समझना, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज होंगे. अच्छा, सेकंड केस हमारे पास ये है कि अभी हम जो रीजन लेंगे वो एक्स एक्सिस और उसके बीच में नहीं होगा, एक नेक्स्ट लाइन होगा, कोई भी लाइन हो सकता है, ये लाइन, और यहां से लेकर यहां तक ये रीजन हम लेंगे, एंड इसी रीजन को हम रिवॉल्व करेंगे अबाउट द सेम लाइन. ये जो लाइन है इस पे रिवॉल्व करेंगे, तो ये यहां पे इस तरह का सॉलिड बन जाएगा. ठीक है. अब इसमें जब आप पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट जो होगा, अब ये जीरो नहीं होगा इसका कोऑर्डिनेट, इसका जो भी लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू सपोज करें 4 दिया हुआ है ये लाइन, तो ये जो पॉइंट आप लेंगे, दिस पॉइंट, ये आप अभी x और 4 लेंगे. पहले हमने x0 लिया था, अब हम x4 लेंगे. ऊपर वाला पॉइंट सेम रहेगा एंड सो ऑन. ये आगे एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा, हम करेंगे इसमें एग्जांपल. तो ये सेकंड केस है. केस 1 में क्या हुआ कि हमने रीजन लिया था बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस और रिवॉल्व किया था अबाउट एक्स एक्सिस. अभी हमने रीजन लिया हुआ है अबाउट अ कर्व एंड एनी आर्बिट्ररी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड रिवॉल्व अबाउट दैट लाइन. जबकि थर्ड केस में क्या होगा, रीजन आप लेंगे वही चीज जिस तरह भी मैंने एनिमेशन में भी शो किया था. ये रीजन हम लेंगे, लेट सपोज, और इसको हम रिवॉल्व करते हैं अभी अबाउट एक्स एक्सिस. ये यहां पे ओपनली सा रिवॉल्व हो जाएगा, या कोई और लाइन पे भी आप इसको रिवॉल्व कर सकते हैं. यहां पे एक और लाइन है, मतलब उसी लाइन पे रिवॉल्व नहीं करना है जिससे वो बाउंड हो रहा है. ठीक है. तो इट्स अ रीजन बाउंडेड अबाउट बाय अ कर्व बिलो बाय अ लाइन एंड इट इज रिवॉल्व बाय अबाउट एनी अदर लाइन. ठीक है. तो ये हमारे पास इस केस में फिर हम इसको कहते हैं वाशर मेथड, वो बाद में आ रहा है. जो अभी एग्जांपल मैंने एनिमेशन शो की थी उसमें वही था, बीच में होल आ जाता है, सुराख बन जाता है इसके बीच में, आपने देखा होगा उसका जो होल आया था. ठीक है. तो यहां पर भी इस तरह से होल भी बनेगा. राइट. ओके. यही चीजें फिर अलोंग वाई डायरेक्शन के लिए भी हैं. रीजन बिटवीन अ कर्व एंड वाई एक्सिस रिवॉल्विंग अबाउट वाई एक्सिस. तो ये आर ऑफ एक्स की बजाय आर ऑफ वाई हो जाएगा. Same thing here as well, a region between a curve and any other line and revolving about that line. And यहाँ पर फिर region between a curve and a line and revolving it about any other line. ठीक है. तो ये 6 हमारे पास हो गए. लेकिन इनमें से अगर आप देखेंगे तो एक चीज कॉमन है कि अगर रीजन इफ दैट इज lying along x axis, so we revolve that about x axis or line parallel to x axis. एंड अगर रीजन हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे देखें along y axis है तो उसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं about y axis or any line parallel to y axis. लेकिन हमारे पास ऐसे भी केसेस होंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रीजन होगा along x axis लेकिन इसको हम रिवॉल्व करेंगे about y axis. Not only about y axis, it could be revolved about any line parallel to y axis. ठीक है. या रीजन होगा along y axis, ठीक है, इस रीजन को हम रिवॉल्व करेंगे अबाउट
एक्स एक्सिस। ये चीज़ें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी। अभी हम ये 6 केसेस जो है इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स डू एन एग्जांपल फॉर ऑल दिस। ये पहले वाला एग्जांपल है, सिंपल है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स फ्रॉम 0 to 4 जो एनिमेशन में आया था, लेकिन वहाँ पे लाइन 1/10x लिया था। यहाँ पर लाइन जो है वो सिंपली y इज इक्वल टू 0 ही है, बिकॉज x एक्सिस हम ले रहे हैं। तो x एक्सिस के और x एक्सिस पे इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट मैंने क्या बताया था, ये आप लेंगे x0, बिकॉज x एक्सिस पे है। दिस पॉइंट इज x0 और ये जो पॉइंट है दिस इज x एंड y की वैल्यू है अंडर रूट एक्स। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली रेडियस ही होगा, उस स्ट्रिप का या उस स्क्वायर का, जो भी आप रेक्टेंगल क्या है, सॉरी यार, सेक्टर का, ठीक है। और फिर इसमें सिंपल पुटिंग करेंगे वॉल्यूम में, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। ये जो सॉलिड बन रहा है वो 0 से लेकर 4 तक बन रहा है, तो हम इसको 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 8 पाई। ये वही चीज़ सर्कल है, तो इसको अगर आप रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमारे पास क्या बनता है, स्फेयर बनता है। एंड स्फेयर का वॉल्यूम जो है दैट इज 4 पाई/3 a क्यूब। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, आप इसको देख सकते हैं खुद। अब ये सेकंड केस है जिसमें हमारे पास एक आर्बिट्री लाइन पे हम ले रहे हैं उसको, इसी दैट ये लाइन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड लाइन y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, मतलब कहाँ तक आपने जाना है, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू 1, उसी लाइन पे आपने इसको रिवॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पहली बात तो ये है कि आपके पास जो सॉलिड बनेगा वो यूं बन रहा है। अब ये सॉलिड कहाँ से शुरू हो रहा है, वो जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व का, और वो 1 है। तो सॉलिड जो शुरू होगा वो 1 से शुरू होगा और जाएगा वही 4 तक, बिकॉज हमें गिवन है कि 4 तक हम जा रहे हैं, ठीक है। ये 4 इस वजह से आ रहा है। अच्छा, अब ये जो रेडियस बनेगा वो क्या होगा, ये पॉइंट पहले हमने लिया था x0 बिकॉज वो x एक्सिस पे है। अभी ये जो है ये कहाँ पे है, ये x1 पे है, बिकॉज लाइन 1 दिया हुआ है, y की वैल्यू 1 है, तो ये x1 पे है। ऊपर वाला पॉइंट वही सेम ही है, दैट इज x एंड अंडर रूट एक्स। तो बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस x0 एंड दिस इज अंडर रूट x माइनस 1। तो यू सी दैट इसका जो रेडियस है वो अंडर रूट x माइनस 1 है। इधर पुट करें, स्क्वायर ओपन करें, यू गेट 7 पाई/6। ये चीज फिर अलोंग y के लिए भी है। अभी थर्ड केस डिस्कस नहीं हुआ, ये जो डायरेक्ट हम जंप लगा रहे हैं फोर्थ की तरफ। तो एरिया बिटवीन अ कर्व एंड y एक्सिस एंड रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ में दिया हुआ है कि आप सिंपल इसके r ऑफ y फाइंड करोगे, कंसेप्ट उसका वही सेम है, ठीक है। इस केस में हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो y एक्सिस पे होगा, और y पे जो हम पहला पॉइंट लेंगे वो 0 होगा कंपोनेंट उसका, उसमें x0 था, अभी ये 0y होगा। और ये जो पॉइंट है, ये जो x की वैल्यू गिवन है 2/y एंड देन 0, सॉरी y 0 नहीं है, तो हमने ये कंपोनेंट y लिया हुआ है इसका, और इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करोगे तो 2/y आ जाएगा। तो इन दिस केस यू सी दैट r ऑफ y जो है वो किसके बराबर है, वो 2/y के बराबर है। पुटिंग करेंगे आपके पास वॉल्यूम इस सॉलिड का आ जाएगा, जो कि क्या कहते हैं, कौन सा शेप बन रहा है, इस सॉर्ट ऑफ जो बटा हश है उस तरह बन रहा है, बटा हश कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। एंड द सेम थिंग फॉर रीजन बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सी दैट यू चेक योरसेल्फ। ये एग्जांपल भी बड़ा आसान है।
यहाँ पर लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये कर्व है वाई स्क्वायर प्लस 1 का, ये कर्व है y इक्वल टू 3 का, x इक्वल टू 3 का, और इसी पे रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब किसी और जगह पर रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसी लाइन पे रिवॉल्व कर रहे हैं। इस तरह का ये सॉलिड बन जाता है। और फिर इसका वही तरीका है कि आपने पॉइंट जो लेना है वो x की वैल्यू आप 0 के बजाय 3 होगी, तो 3 टू y, और यहाँ पर पॉइंट आपने लेना है 2 माइनस वाई स्क्वायर टू वाई एंड सो ऑन। तो रेडियस बन जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसका कर्व वाई स्क्वायर प्लस 1 है, सॉरी। अच्छा, ये वो फिर थर्ड केस है कि हमारे पास अगर दो पॉइंट्स के बीच, दो कर्व्स के बीच में रीजन है और उसको आप रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस या एनी अदर एक्सिस, तो उस जो मेथड यूज होगा उसका हम वॉशर्स मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देख लें तो बीच में क्या बन जाता है, इस केस में फिर बीच में होल बंद है, जैसे हमने वहां पे देखा था एनिमेशंस में, ठीक है। इस तरह से बीच में, तो एक वॉल्यूम हमारे पास ये बन जाता है, तो एक कर्व से ये बन जाता है, दूसरे से ये बनता है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल कर्व है उसे जो सॉलिड बनता है उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, और जो इंटीरियर कर्व है उसका भी हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इस पूरे वॉल्यूम से हम ये वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये रह नहीं जाएगा, जो होल पार्ट है वो हम निकाल देते हैं, यानी होल का वॉल्यूम फाइंड करो, पूरे का वॉल्यूम फाइंड करो, तो जो होल वाला है वो निकाल दें। दैट्स व्हाई वी हैव दिस रूल, v इज इक्वल टू पाई, ये एक्सटर्नल का वॉल्यूम हो जाएगा और एक इंटरनल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वी आर हैविंग पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल है। The region bounded by the curve y is equal to x square plus 1 and the line y is equal to minus x plus 3 and it is revolved by x axis। पहले हम इसी लाइन पे रिवॉल्व कर रहे थे, अब हम रिवॉल्व करेंगे अबाउट x axis, बिकॉज ये रीजन जो है वो along x axis ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे, ये इस तरह का सॉलिड बन जाता है, बीच में एक होल आएगा उसका, ठीक है। तो वो होल क्या करते हैं, इसके लिए स्मॉल r फाइंड करेंगे और कैपिटल R फाइंड करेंगे। स्मॉल r ये पॉइंट होगा, यहां से x, मतलब आप पॉइंट क्या लेंगे, वही x0 पॉइंट ले लेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ये स्मॉल हो जाएगा, और इसी पॉइंट से लेकर इस तक डिस्टेंस ये कैपिटल R हो जाएगा। तरीका वही है। ये हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, जिस तरह यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा x0, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा x, और y की वैल्यू यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपके पास स्मॉल r होगा, बिकॉज ये लोअर वन। बहरहाल से फर्क नहीं पड़ता, आखिर में आपने वैसे भी एब्सोल्यूट ही लेना है, बिकॉज जब आपको फंक्शन दिए हो तो आपको ये आइडिया नहीं होता कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी पॉइंट के लिए हम ये वाला पॉइंट भी कंसिडर करेंगे, टॉप वाला, ये पॉइंट क्या होगा, x तो x ही है, y की जगह आप लगा लेंगे माइनस एक्स प्लस 3, और फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करोगे, उसको आपने कैपिटल R कहना है। तो जब इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड होगा तो x माइनस एक्स तो 0 होगा, और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 इज x स्क्वायर प्लस 1। तो दैट्स वाई हमारे पास जो स्मॉल r है वो x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। जबकि कैपिटल R में क्या करेंगे, x माइनस एक्स से 0 आ जाएगा, और माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 0 से आपके पास आ जाएगा, जो कि माइनस एक्स प्लस 3 ही आ जाता है। इसलिए स्मॉल r x स्क्वायर प्लस 1 है और ये माइनस एक्स प्लस 3 है। अगर ये किसी और लाइन पे होता है, यहाँ पर ये लाइन होता है यूं, कहीं पे इस तरह लाइन होती, तो यहाँ पर हम ये जो पॉइंट लेते वो इसके मुताबिक x0 नहीं होता, x1 होता या x2 होता, फिर या x1/2 होता, कुछ इस तरह से। बाकी तो इंटीग्रेशन है, फिर उस फार्मूले में पुटिंग करेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है उसको, वो आपने वही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 1 है, यहाँ से सी दैट दोनों को इक्वेट करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो एक्स की वैल्यू आती है -2 से 1 तक। तो आपने उसको इंटीग्रेट करना है, आर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ऑफ एक्स स्क्वायर, वो -2 से 1 तक। बाकी फिर आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं टू गेट्स 117 पाई। पाई को नहीं भूलना, पाई बाहर आएगा इसके साथ, राइट। सो दैट्स द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, जिसमें होल हो जाता है। ये वही चीज है, सिर्फ फर्क यह है कि हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है और इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हमें फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन जब आप इसको रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे x से फंक्शन ऑफ y में, तो यू वुड राइट x इक्वल टू अंडर रूट वाई, दूसरा लिखेंगे x इक्वल टू वाई बाई 2। ये कन्वर्जन फिर जरूरी है। अगर ये रिवॉल्विंग अबाउट x एक्सिस होता फिर ये कन्वर्जन ना होती, लेकिन अब ये रिवॉल्विंग अबाउट y एक्सिस, तो हम ये कन्वर्जन करेंगे। बाकी तो फिर वही चीज है। ओके जी, एक्सरसाइज 6.1 जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक मैंने ऑलरेडी आपको क्लासरूम में दिया हुआ है, असाइनमेंट नंबर 2। अब वहीं पे उसको सबमिट करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक में फिर इंशाल्लाह हम वो दूसरा वाला करेंगे, जिसमें रीजन जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, उसको हम रिवॉल्व करेंगे अबाउट वाई एक्सिस। और आगे भी कुछ और चीज़ें भी हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, तो वो आगे हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई सवाल है तो पूछें। If there is no question, so I can stop the recording.